Welcome to this next lecture of structural dynamics. So today's lecture, the topic that we'll be covering in today's lecture, a bit off topic in a sense that they are not all that necessary and important for the understanding of the concept that are coming ahead, but they have certainly the importance they have. They have that, the depth that it is very important, and it's very good at this time to include and to discuss those things, because the concept that we have discussed so far, so that it is the right time to include in the lecture. So that's why I've included in this lecture and in the next lecture, inshallah, the topic that I would be covering. So those topics, today's lecture topic and the next lecture topic, they would be mostly informative sort of topics. The concept are very important in a sense that they really make good sense. They may really improve your understanding of the structural dynamics, right? So we would be discussing the resonant frequencies and the resonant responses. As you know that in the last lecture we discussed the response of damped single degree of freedom system to the harmonic forces, and we discussed the effect of resonance on that particular structure, the damped structures. And then in the last lecture, in the last part of the last lecture, we discussed about the response factors as well, and then we discussed the displacement response factor, the velocity response factor, and as well as the acceleration response factor, right? So in today's part, in this resonant frequencies and resonant responses, we will see that how exactly which frequencies would affect the displacement response, which frequency would affect the velocity response, and which frequency would affect the acceleration response, right? Because all these responses that we discussed in the last lecture, they have very strong influence on the understanding of the structural dynamics, and we'll see today that which forcing frequency would induce sort of this maximum amplitude in the acceleration, maximum amplitude in the velocity, and then the maximum amplitude in the displacement as well. So a resonant frequency, we will see that what is the resonant frequency. A resonant frequency is defined as the forcing frequency at which the largest response amplitude occurs. That's what we have understood so far, that the resonant frequency is one at which the largest response amplitude occurs. Be that response be the displacement response, or it can be the velocity response, or it can be the acceleration response. So resonant frequency is the frequency at which the maximum or the largest response would occur, right? So the figure in this particular figure shows that the peaks in the frequency response curve, as you can see that these figures we have already discussed in the last lecture as well, right? So but you can observe in this figure that the peaks occur not exactly at the resonance, where the forcing frequency is equal to the natural frequency. So there is a slight difference, slight deviation from the peaks are slightly deviated from the resonant frequency. So we'll see that at what frequency exactly this peak would occur, because this peak shows that this is the largest amplitude, right? So this particular figure, this is the displacement response, and then in the center you can see this is the velocity response, and at the bottom of the screen you have the acceleration response. As you can see in all these three responses, the displacement, velocity, and acceleration responses, you can see the peaks occur. Let's take for example this 1%, 10% case. You can see the peak occurs slightly to the left of it's my left. So you can see that this peak occurs slightly to the left of this thing, right? And the same way, as you can see the 20% response, it is also on the left side of this, and there is no peak occur. We have already discussed for this 70% and the critical damped structure, there is no peak at all. Similarly, as far as the velocity response is concerned, the similar pattern can be observed in the velocity response, and the same in the acceleration response. You can see the peaks are occurring slightly to the right of the resonant frequency. So we'll see that at what exactly the frequency we can achieve this largest amplitude.
So these resonant frequencies can be determined by setting to 0 the first derivative of RD, RV and RA, and you know what these RDs, RV and RA are. ठीक है, so we know there's RD is the displacement response and RV is the velocity response and RA is the acceleration response. So whatever equation that we developed in the last lectures, if you set that equation is equal to 0 with respect to frequency, because we want to calculate the maximum amplitude with respect to the frequency. So with the knowledge of your mathematics, you know that if you want to calculate the maximum values for certain thing, then we derivate that thing with respect to that particular thing. अगर आप उसको velocity ये frequency ratio से लेना चाह रहे हैं, then you could derivate it with the frequency ratio. If you want to, अगर आप उसको देखना चाह रहे हैं कि x length के अंदर कहाँ है, तो फिर आप इसको differentiate कर देते हैं with respect to x and then set it equal to 0. इससे जो फिर x की वैल्यू मिलती है, वहाँ फिर आपको ये पता चल जाता है कि यहाँ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ रही है. ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने मैक्सिमम स्लोप चाहिए है, तो फिर आप मैक्सिमम स्लोप के लिए वो स्लोप की इक्वेशन को 0 को इक्वल कर रख देते हैं. और अगर आपको लेंथ के अंदर चाहिए कि किस लेंथ के ऊपर किस, अगर बीम की आप एनालिसिस कर रहे हैं एंड यू वांट टू कैलकुलेट दी एग्जैक्ट पॉइंट वेयर दी स्लोप इज 0, देन उस स्लोप इक्वेशन को फर्स्ट डेरिवेटिव यू सेट एट इक्वल टू 0 और उसे जो एक्स की वैल्यू मिलेगी, देन यू कैन गेट दी position of x where the slope would be 0. Similarly, if you want to calculate the zero deflection, the same way you can, if you set equal to 0 the deflection equation, you can find out the maximum deflection at the zero deflection. In the similar pattern, for if you want to calculate the largest amplitude of RD, RV and RA with respect to the frequency ratio, तो फिर आप जो इसकी इक्वेशंस हैं उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें, उसको इक्वल टू 0 करें, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी रेशियो, बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी वेयर द लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड वुड अकर. ठीक है, तो ये काम करने से, और जो जीटा है डैम्पिंग रेशियो है, क्योंकि दो उसके अंदर वेरिएबल आ रहे हैं. अगर आपने ये लास्ट स्लाइड में कर भी देखा था, तो डैम्पिंग का भी इन्फ्लुएंस आ रहा है एंड देन फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी आल्सो इन्फ्लुएंस करती है. तो डेफिनेटली विल हैव टू सेट वन थिंग एज कांस्टेंट एंड देन वी कैन वेरी द अदर थिंग. सो इन दिस पर्टिकुलर डेरिवेशन वी आर सेटिंग द डैम्पिंग रेशियो एज 1/2 अंडर रूट. ठीक है, एंड देन वी आर फाइंडिंग आउट द फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दिस इज द फ्रीक्वेंसी एट विच द डिस्प्लेसमेंट लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड वुड अकर. ठीक है, सो इन दैट केस तो ये जो चीज़ आ रही है वो फिर इसकी इक्विवेलेंट आ जाएगी. अगर आप ये इक्वेशन जो आर डी की इक्वेशन थी इसको 0 करते हैं और फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, और तो उससे जो फ्रीक्वेंसी आती है, तो दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एट विच द लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड वुड अकर. एज फार एज द वेलोसिटी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, उसको जब आप लेते हैं तो दैट वुड बी इक्वल टू ओमेगा एंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी के पर ये आके वो हो जाएगा. और अगर आप एक्सेलरेशन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लेना चाह रहे हैं, तो उसके केस में वो फिर ओमेगा n/1 माइनस 2 जीटा स्केयर का अंडर रूट. तो ये वो 3 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज़ हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज़, जिसके ऊपर लार्जेस्ट रेस्पेक्टिव जो है एम्पलीट्यूड मिल जाएगा, चाहे वो आप रेजोनेंट का डिस्प्लेसमेंट का लेना चाह रहे हैं, चाहे वेलोसिटी का लेना चाह रहे हैं, चाहे आप वो एक्सेलरेशन का लेना चाह रहे हैं. तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज. तो अब इसको, ठीक है, तो फॉर एन अनडैम्प्ड सिस्टम द 3 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज दैट वी हैव जस्ट डिराइव्ड आर आइडेंटिकल. अगर अनडैम्प्ड सिस्टम होगा, तो अगर आप इसके अंदर देखते हैं, तो अगर डैम्पिंग को आप 0 कर लेते हैं इसके अंदर, तो ये तमाम की तमाम सारी जो चीज़ें हैं ये ओमेगा एन के बराबर हो जाएंगी. और ये हम जानते हैं कि जब फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो जाती है, तो फिर रेजोनेंट अकर हो जाता है. तो ये जो पर्टिकुलर केसेस थे, ये केसेस थे ऐसे केस के लिए जहाँ डैम्पिंग आ रही थी. तो डैम्पिंग का जो इन्फ्लुएंस था डेफिनेटली वो उसके ऊपर आना था. ठीक है, तो यहाँ अगर आप वेलोसिटी रेजोनेंट में देख रहे हैं, तो यहाँ डैम्पिंग का कोई इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा. ठीक है, तो इन दो के अंदर डैम्पिंग के इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं. तो यही वो बात यहाँ कर रहा है कि फॉर एन अनडैम्प्ड सिस्टम द 3 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज आर आइडेंटिकल एंड इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन ऑफ द सिस्टम. ठीक है, लेकिन जो हमारी इंट्यूशन है, जो एक हमारा कॉमन सेंस है, जो उसको सिक्स सेंस कहते हैं, वो सजेस्ट करता है दैट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज फॉर अ डैम्प्ड सिस्टम शुड बी एट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी. क्योंकि अब तक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी है उसमें तो हमें यही फील हो रहा है कि भाई जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसी के ऊपर ही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आना चाहिए थी. लेकिन जो डैम्पिंग का इन्फ्लुएंस था उसको भी हमने देखा कि उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, जो डैम्पिंग इन्फ्लुएंस कर रही थी ये रेजोनेंस के ऊपर, हमने देखा कि अगर अनडैम्प है तो उसके अंदर जो रेजोनेंस थी वो अनबाउंडेड थी. और जैसे जैसे डैम्पिंग बढ़ाते चले गए, 70% के अंदर आपने देखा कि उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन था वो स्टैटिक से भी कम आ रहा था. ठीक है, तो डैम्पिंग का तो बहरहाल इन्फ्लुएंस था. ठीक है, तो वो जो इन्फ्लुएंस है वो फिर इस तरीके से आया, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है
डैम सिस्टम की जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है ये रिलेशनशिप से आती है, जो कि हमने बहुत जो इनिशियल लेक्चर्स थे उसके अंदर ये कैलकुलेट की थी कि ओमेगा डी जो है दैट इज़ इक्वल टू ओमेगा एन इन √1 माइनस जीटा स्केयर के था, बट दिस डज नॉट हैपन इन रियलिटी, ठीक है ना। तो रियलिटी में आप देखते हैं कि ये इस तरीके से फिर नहीं होता, ठीक है। सो द डिफरेंस इज स्मॉल, अगर आप देखते हैं कि डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, हाउएवर फॉर द डिग्री ऑफ डैम्पिंग यूजुअली एम्बॉडीड इन दी स्ट्रक्चर, जो कि हमने जिक्र किया था कि जो नॉर्मली स्ट्रक्चर्स हमारे होते हैं तो उसके अंदर जो डैम्पिंग का रेशियो होता है वो बिलो 20% होता है। तो अगर आप बिलो 20% के लिए देखेंगे तो जो अफेक्ट आ रहा है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर वो बड़ा मिनिमल आ रहा है। और आपने फिगर के अंदर भी देखा है जो शिफ्ट था, जो डेविएशन थी पीक से 1 से लेफ्ट या राइट की तरफ जो थी वो भी बड़ी माइन्यूट थी, और वो बड़े अगर आप गौर से उसको ऑब्जर्व करें तब आपको फील हो रहा था कि भाई ये जो थोड़ा सा स्लाइड डेविएशन है। बहरहाल ये जो थोड़ी स्लाइड डेविएशन भी हैं तो जाहिर सी बात है जब हम पढ़ने जा रहे हैं एकेडमिक पर्पजेज़ के लिए तो यही हमारी इंटरेस्ट की चीज़ होती हैं, ठीक है। तो बहरहाल जो बात यहाँ समझने की है वो ये है कि अगर वेल बिलो 20% आपके स्ट्रक्चर की डैम्पिंग रेशियो है तो डिफरेंस जो है अमॉन्ग द 3 रेजोनेंट फ्रिक्वेंसीज एंड नेचुरल फ्रिक्वेंसीज आर नेग्लिजिबल हो जाता है। फिर जो डिफरेंस आ रहा था, क्योंकि हमने अभी तक तो जो पढ़ा था यही था कि अगर फोर्सिंग फ्रिक्वेंसी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के इक्विवेलेंट हो जाती है तो फिर हम ये कहते आ रहे थे कि भाई रेजोनेंस अकर हो रही है। लेकिन फिर हमने जब ये डायनेमिक रिस्पांस फैक्टर को पढ़ा जिसमें डिस्प्लेसमेंट भी थी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन रिस्पांस फैक्टर थे, और इनके हमने फिगर को क्लोजली ऑब्जर्व किया, या आपने ऑब्जर्व नहीं किया तो एटलीस्ट मैंने आपको ऑब्जर्व कराया इन फिगर में और आपको भी फील हुआ कि यस उसके अंदर सर्टेन डेविएशन है, ठीक है। तो फिर उस वो जो किस फ्रिक्वेंसी के ऊपर वो लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड मिले वो हमने लास्ट स्लाइड में कैलकुलेट की, और अब हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो डेविएशन थी फ्रॉम दी नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो थी वो जो थी बड़ी नेग्लिजिबल थी इफ़ यूर जो डैम्पिंग है दैट इज़ वेल बिलो 20%। अच्छा जी, ठीक है। सो जो 3 डायनेमिक रिस्पांस फैक्टर एंड द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसीज आर, अब इसका जो समरी सी आप कह लें कि जो डिस्प्लेसमेंट रिस्पांस फैक्टर है और जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है वो फिर इस तरीके से ये रिलेशनशिप इनकी बन जाएगी, ठीक है। और जो वेलोसिटी रिस्पांस फैक्टर है वो ये बन जाएगी, एंड देन लास्टली जो एक्सेलरेशन रिस्पांस फैक्टर है वो फिर इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इसमें सब में देख रहे हैं कि 1/2 जीटा जो थी वो सबके अंदर आ रही है, तो ये चीज़ ब्रैकेट में अंदर यहाँ आ रही है, ये चीज़ यहाँ आ रही है, तो ये जो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द डैम्पिंग, ठीक है। तो ये हमारी डिस्कशन थी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज़ की। अभी जो एक और छोटे छोटे जैसे मैंने आपसे बताया था कि कंसेप्ट्स हैं, लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स हैं और बड़े अच्छे यूजफुल कंसेप्ट्स हैं फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चरल डायनामिक्स। एक कंसेप्ट जो अब आ रहा है वो हाफ पावर बैंडविड्थ है, ठीक है। इसको हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व जो है, ठीक है, फॉर आर डी इज शोन इन द फिगर, ये फिगर के अंदर भी आ रहा है, ठीक है। ये एक फिगर है, तो अगर आप इस फिगर को गौर से देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको कि जो ये चीज़ हाईलाइटेड चीज़ नज़र आ रही है, ये चीज़ नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो ये जो है इसको हम कह रहे हैं हाफ पावर बैंडविड्थ, ये जो चीज़ है ये हाफ पावर बैंडविड्थ है, ठीक है। तो ये 1/√2 जो है ये जो अगर आप रिस्पांस देख रहे हैं ये रिस्पांस दिस इज द रेजोनेंट एम्पलीट्यूड, ये जो पीक है डेफिनेटली दिस इज द रेजोनेंट एम्पलीट्यूड है। अगर रेजोनेंट अकर होता है और आपकी जहाँ फोर्सिंग फ्रिक्वेंसी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर है आर डी में, तो एम्पलीट्यूड आपका यहाँ आ रहा है, और जो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस आ रहा है जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का आया है वो आपने थोड़ा सा उसका इफेक्ट देखा है, ठीक है। तो वो एक 1 से जो है थोड़ा सा आप मैंने बताया था कि लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो बहरहाल ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है जो ऑलमोस्ट 5 के करीब है, दिस इज़ द रेजोनेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो वेयर दी हाफ पावर बैंडविड्थ इज़ डिफाइंड, यहाँ जो है फिर अगर आप इस पर्टिकुलर चीज़ को देख रहे हैं ये वाली चीज़, तो ये अगर आप देखते हैं ये मैं पॉइंटर ले लेता हूँ, ये जो चीज़ आ रही है दिस इज़ दी रेजोनेंट एम्पलीट्यूड। कैसे है रेजोनेंट एम्पलीट्यूड है 1/√2 रेजोनेंट एम्पलीट्यूड है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है इसको हम हाफ पावर बैंडविड्थ कहते हैं, ठीक है। इसका क्या इफेक्ट है, क्या इन्फ्लुएंस है, ये आगे चल कर आपका आएगा। यहाँ जो चीज़ अच्छी है वो ये कि आपने इस चीज़ की टर्मिनोलॉजीज़ को सुना है, इस टर्मिनोलॉजी को थोड़ी समझ बूझ आपके जहन में जाएगी, और जब जब ये टर्मिनोलॉजीज़ कहीं आप इसको इस्तेमाल होता हुआ देखेंगे या इसकी कई टर्मिनोलॉजीज़ को आप सुनेंगे तो एटलीस्ट यू वुड बी इन अ पोजीशन टू कि आप इस चीज़ को ग्रैस्प कर सकें और इस चीज़ को समझ सकें कि क्या बातें हो रही हैं, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं कि क्या है। तो अगर वो कहता है कि ओमेगा ए एंड ओमेगा बी, ज़ाहिर है ओमेगा जो है वो फ्रीक्वेंसी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और ए और बी की हमने यहाँ सब्सक्रिप्ट इस्तेमाल किए हैं, तो ये जो सब्सक्रिप्ट है ये आइदर साइड है,
ये जो आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1 का था उसका ये साइड और लेफ्ट साइड और राइट साइड का है, तो ए और बी आर द फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी ऑन आइदर साइड ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि वेयर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन, ठीक है। तो ये ओमेगा ए और ओमेगा बी आर द लेफ्ट एंड राइट फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस जो बैंडविड्थ थी उसकी, ठीक है। एट विच द एम्पलीट्यूड यू नॉट इज़ 1/√2 टाइम द रेजोनेंट एम्पलीट्यूड। तो अगर आप इसकी ये लास्ट फिगर को देख लें, ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट होगा दिस इज़ दी ओमेगा ए पॉइंट एंड दिस इज़ दी ओमेगा बी पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ जो ये रेशो आ रहे हैं इसको हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है ये फ्रीक्वेंसी रेशोज़ हैं, ठीक है। और ओमेगा ए एंड ओमेगा बी आर दी दिस फ्रीक्वेंसी ऑन दी आइदर साइड, लेफ्ट साइड और ऑन दी राइट साइड। तो इसलिए यहाँ ओमेगा ए और ओमेगा बी का हमें पता नहीं है, क्योंकि ये रेशो की टर्म यहाँ दी हुई है कि ये रेशो 0.8 है, 0.9 है, पॉइंट जितना भी है, जहाँ आपके पास ये 1/2 जो है ऑफ द रेजोनेंट एम्पलीट्यूड का आ रहा है, ठीक है। तो ये अब हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या है। सो इक्वेटिंग आर डी फ्रॉम इक्वेशन 25, जहाँ हमने वो आर डी की इक्वेशन बनाई थी उसको इक्वेट कर रहा है, एंड 1/√2 टाइम द रेजोनेंट एम्पलीट्यूड आर डी गिवन बाई इक्वेशन 34 बाई डेफिनेशन, ठीक है। तो ये जो ओमेगा ए और ओमेगा बी की चीज़ आती है वो इस चीज़ की इक्विवेलेंट आ जाती है, ठीक है। तो इसको अब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो एट द एंड जो हमारे लिए रिजल्ट आता है वो मैटर करता है, क्योंकि हमने जितनी भी अभी तक डिस्कशन की है उसमें हमने यही कहा कि वी आर नॉट jumping into the depth of the mathematics, we are just trying to understand the final result and will be trying to understand what exactly that final equation is trying to communicate with us, ठीक है। and we are calling this to be equation A, inverting both side। अगर हम both side को इन्वर्ट कर लें तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, इसका ज़ाहिर है 1 यहाँ चला जाएगा और ये सारी 2 की चीज़ें ये 1 यहाँ नीचे आ जाएगा। तो इन्वर्ट करना, इसको उल्टाना तो है, तो ये तो कोई ऐसे कंसेप्चुअल चीज़ नहीं है, ठीक है। एंड देन वी विल बी स्केयरिंग बोथ साइड, तो ये दोनों साइड को स्केयर कर लिया, ठीक है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया, एक्सपेंड किया, तो यू विल गेट दिस थिंग, ठीक है, क्योंकि ए माइनस बी का स्केयर है ये जो चीज़ है, दिस इज़ ए माइनस बी स्क्वायर। बड़ा मेरे ख्याल में हमने 6th या 7th क्लास में फार्मूला पढ़ा कि ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2ab। तो दिस इज़ ए का स्केयर, दिस इज़ बी का स्केयर एंड दिस इज़ माइनस 2ab, एंड देन दिस इज़ द स्केयर ऑफ दिस थिंग एंड देन दिस इज़ द स्केयर ऑफ दिस थिंग। सो वी आर स्केयरिंग दिस बोथ साइड and then we are further simplifying to get this particular this thing, and then above equation is a quadratic equation। अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो दिस इज a quadratic equation, ठीक है। तो इसके जो है वो रूट्स हमने निकालने होंगे, ताकि हमें अभी मालूम करने जा रहे हैं कि दो फोर्सिंग जो फ्रीक्वेंसीज थी ओमेगा ए एंड ओमेगा बी, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई, ये जो पॉपुलर क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है, उस फार्मूले से ये निकाल दिया, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं तो यू विल गेट दिस थिंग, ठीक है। और इसको जो काट पीट हो रही है इस सारी चीज़ें के अंदर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी टर्म्स हैं, ये स्केयर वाली टर्म्स अलग हैं और पावर 4 वाली टर्म्स अलग हैं। इन सब को जब आपने आंसर किया तो आपको ये चीज़ मिल गई, एंड देन फाइनली आपको ये चीज़ मिल गई। तो ये सारी स्टेप बाय स्टेप इक्वेशंस हैं, ये चूँकि इसलिए कर दी हैं कि बुक्स में नॉर्मली नहीं होती, तो फिर अगर आप स्टूडेंट जो हैं इसको अपने लेजर टाइम में इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, यही चीज़ कि भाई ये कैसे आ गया, तो आई एम नॉट जंपिंग इनटू द मैथमेटिक्स, आई एम जस्ट इंक्लूडिंग ऑल दी स्टेप्स that are being involved in calculation of these two frequencies omega A and omega B, ठीक है। so if you want to मैथ्स की आप इंट्यूशन चाह रहे हैं और समझते हैं कि नहीं मैथ भी आना चाहिए, yes I have included all those steps as well, but I am not concentrating a lot on these mathematical equations and mathematical steps at this particular point, ठीक है। सो फर्दर जो सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो आपको ये चीज़ मिल जाती है, ये सिंप्लीफिकेशन चली जा रही है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो अब यहाँ अगर आप देखते हैं तो अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो यू हैव वन पॉजिटिव साइन एंड दी अदर यू हैव द नेगेटिव साइन एज वेल, ठीक है। दो अलग अलग साइन आपको मिल रहे हैं, पॉजिटिव से लेंगे तो यू विल हैव अनदर रूट। जैसे आपको पता है कि क्वाड्रेटिक के दो रूट आते हैं, वो बाज़ औक़ात रियल आते हैं, बाज़ औक़ात वो रियल नहीं आते, ठीक है। तो ये बहरहाल जो भी है दो रूट्स आते हैं, तो यहाँ हम दो रूट देख रहे हैं, दो रूट का जिक्र कर रहा है। वी आर दी पॉजिटिव साइन गिव द लार्जर रूट ओमेगा बी। तो आपने देखा होगा कि जो 1 था, 1 के एक तरफ जो होगी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, और 1 के जो इस साइड के ऊपर थी वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से थोड़ी कम होगी। तो 1 वुड बी द लार्जर रूट एंड द अदर वुड बी द स्मॉलर। तो ये वो कह रहा है, तो जो पॉजिटिव साइन के साथ आप रूट ले रहे होंगे तो दैट वुड बी ओमेगा बी द लार्जर वन, एंड द नेगेटिव साइन के साथ जो इसके नेगेटिव साइन के साथ अगर आप ले रहे होंगे तो दैट वुड बी दी स्मॉलर रूट, ठीक है, जिसको आप ओमेगा ए कह रहे हैं। अच्छा, ठीक है। सो फॉर द स्मॉल डैम्पिंग रेशियोज, अगर डैम्पिंग रेशियो कम है
रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर, जो हमने बार बार इस चीज़ का जिक्र किया है कि प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर में हमारे पास यही होता है कि जो डैम्पिंग रेशियो है बहुत कम होता है, ठीक है। तो वो कह रहा है द टू टर्म्स कंटेनिंग जीटा स्केयर कैन बी ड्रॉप, इफ जीटा इज स्मॉल तो जीटा का स्केयर फिर आपको पता है कि और भी स्मॉल हो जाएगा। तो जो स्केयर वाली टर्म है वो कह रहा है कि हमने उसको ड्रॉप कर दिया एंड इक्वेशन रिड्यूसेस टू दिस थिंग, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये है कि ये टर्म भी ड्रॉप हो गई, ये टर्म भी ड्रॉप हो गई, तो आपके पास बचा 1 प्लस माइनस 2 जीटा और इस पूरे का अंडर रूट है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ मिल गई। तो यहाँ से अब आपको रूट निकालना जो होगा वो और सिंप्लीफाइड हो जाएगा एंड वी आर कॉलिंग दिस इक्वेशन बी, ठीक है। सो टेकिंग ओनली द फर्स्ट टर्म इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द राइट हैंड साइड, ठीक है। ये फिर मैथमेटिकल की चीज़ है। तो एक टर्म जब हमने ने ले ली तो वो ये आ गई 1 प्लस माइनस जीटा, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलर रूट फ्रॉम द लार्जर वन, तो वो ये आ जाता है आपके पास, ठीक है। तो ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए डिवाइड बाई ओमेगा एन, क्योंकि ये जो दो चीज़ें हैं ये दो ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए की टर्म में हमने इसको यहाँ इस तरीके से इस्तेमाल किया, ठीक है। और ये एक दफ़ा ओमेगा बी लिया और एक दफ़ा ओमेगा एन लिया, ठीक है। तो ये अगर आप देख रहे हैं तो 1 प्लस जीटा माइनस 1 प्लस जीटा, ठीक है। तो ये एक दफ़ा इसका मतलब ये है कि ओमेगा बी है माइनस ओमेगा ए। So thus we can write finally this equation C, which says कि omega b minus omega a divided by omega n is equal to 2 zeta, ठीक है। And this can be rewritten as this thing कि zeta is equal to this thing, ठीक है। और zeta is equal to, अगर आप इसको ये रेडियन वाली टर्म में लेते हैं तो ये आ जाता है, और अगर आप उसको CPS जो है उसमें हर्ट्स में लेते हैं तो फिर यू कैन राइट इट इन दिस फॉर्म, ठीक है। तो ये तो काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं जो आप इसको जानते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट दी हाफ पावर बैंडविड्थ एंड वी आर कॉलिंग दिस टू बी इक्वेशन डी, एंड वेयर यू नो के ओमेगा जो है वो 2 पाई एफ है, और एफ यू नो कि दिस इज ऑल दोनों नेचुरल फ्रिक्वेंसीज हैं, जस्ट एक रेडियंस और एक आपका साइकिल्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। दिस इंपॉर्टेंट रिजल्ट इनेबल इवेल्युएशन ऑफ डैम्पिंग, यहाँ से आप काम ये कर सकते हैं कि आप डैम्पिंग को निकाल सकते हैं किसी स्ट्रक्चर की, बिकॉज कैलकुलेशन ऑफ डैम्पिंग जो है वो बड़ा मुश्किल फिनोमेना है कि आप किस तरीके से निकालेंगे। तो अगर आपने किसी स्ट्रक्चर की डैम्पिंग निकालनी है तो ये इक्वेशन आपको बड़े आराम से मिल सकती है। अगर आपको रेजोनेंस मिली है और आपने हाफ पावर बैंडविड्थ के ज़रिए से आपने ओमेगा बी और ओमेगा ए कैलकुलेट कर लिया है तो यू कैन फाइंड आउट द डैम्पिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। तो ये जो हाफ पावर बैंडविड्थ का जो यूज़ था वो जो मैं बताना चाह रहा था वो उसका यूज़ फिर यहाँ आके आ जाता है कि अगर आपने फोर्स वाइब्रेशन टेस्ट करने हैं, ठीक है। जो आगे हम जो हमारे छोटे छोटे टॉपिक आ रहे हैं उसके अंदर हम ये टेस्टिंग को भी पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो कि हम कर सकते हैं जिसमें वाइब्रेशन जनरेटर है और एक आध चीज़ें और भी हैं। तो वो जब हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं एंड फ्रॉम दोज टेस्ट, जिस तरीके से आपने अनडैम स्ट्रक्चर के किए होंगे वहाँ भी हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने की कोशिश की थी, फ्री वाइब्रेशन टेस्ट किए गए थे ना वो। तो अब फ्री वाइब्रेशन टेस्ट के कंपैरिजन में वी विल बी डूइंग द फोर्स वाइब्रेशन टेस्ट, ठीक है। सो विदाउट नोइंग द अप्लाइड फोर्स, क्योंकि अगर आप जो फोर्स लगा रहे हैं यू डू नॉट नो द इंटेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर फोर्स, तो फिर आप इस ये जो इक्वेशन डी है इसकी मदद से बड़ी आसानी के साथ you can find out the damping ratio just by knowing the natural frequency of the structure and then by calculating the half power bandwidth के ज़रिए से जो ओमेगा बी और ओमेगा ए या एफ बी और एफ ए अगर आपको पता चल जाता है by plotting that particular curve, और उससे अगर आप ये चीज़ निकाल लेते हैं तो फिर then you will be able to calculate the damping of a particular स्ट्रक्चर अगर आप टेस्ट परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो जो इसकी एप्लीकेशन है वो ये फोर्स वाइब्रेशन टेस्ट के अंदर हाफ पावर बैंडविड्थ की आ जाती है और बड़ी यूज़फुल फिर वो इंफॉर्मेशन हमें से हासिल हो सकती है, ठीक है। अब ये लास्ट जो इसका पार्ट है वो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स टू कोसाइन फोर्स, क्योंकि अभी तक जो हमने फोर्स पढ़ी हमने पढ़ तो रहे थे हम फोर्स वाइब्रेशन ही, लेकिन जो फोर्सिंग फंक्शन था वो साइन के अंदर था। तो अगर फोर्सिंग फंक्शन कोसाइन के अंदर है तो फिर हम देख लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो ये बड़ा आसान है क्योंकि जो स्टेप वहाँ इन्वॉल्व हुए थे मैं बड़ी तेज़ी के साथ इसको चलूँगा क्योंकि इसकी नॉलेज और इसका थोड़ा बहुत समझ में आना आपके लिए ज़रूरी है। तो मैं इस पर इतना टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दी जो साइन फंक्शन के साथ हमने था वो बहुत ज़्यादा डिटेल में, मेरा ख्याल है कि हमने कोई 3-4 घंटे का लेक्चर उस पर रिकॉर्ड कर लिया है कि साइन फंक्शन के साथ किस तरीके से होता है। तो जो कोसाइन फंक्शन है इस पर आई विल गो वेरी क्विकली, मैं इस पर जाने की वो करूँगा, तो डू नॉट वरी वेरी मच, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ये फ्री वाइब्रेशन का पार्ट है, ये इसके अंदर इनर्शियल फोर्सेज हैं, डैम्पिंग फोर्सेज हैं
और ये स्टिफनेस फोर्सेज हैं, एंड देन ये जो राइट हैंड पार्ट है ये फोर्सिंग फंक्शन होता है। और यहाँ अगर आप फोर्सिंग फंक्शन क्या देख रहे हैं तो कॉज ओमेगा टी की टर्म में हमने लिया हुआ है, ये साइन ओमेगा टी की टर्म में भी नहीं लिया हुआ हमने, ठीक है। तो अगर कॉज का फंक्शन है तो फिर ज़ाहिर है थोड़े बहुत इसमें फ़र्क आएगा, वो फ़र्क हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से जहाँ जिस तरीके से हमने वहाँ डिवाइड किया था, यहाँ भी हमने एम के साथ डिवाइड कर दिया, और फिर ये हमें सारी चीज़ों की पर्टिकुलर्स पता था कि जीटा क्या है, ओमेगा एन क्या चीज़ है, तो नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दैट, ठीक है। सो दिस इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन इफ़ अ फोर्सिंग फंक्शन इज़ अ कोसाइन फंक्शन, ठीक है। तो अगर साइन फंक्शन होगा तो यहाँ कॉस की जगह के ऊपर साइन लगा हुआ होगा। तो अब कोसाइन, इसका मतलब ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका जो सोल्यूशन होगा दैट वुड बी द सेम एज दैट वी हैव ऑलरेडी डिराइव इन दी फोर्स वाइब्रेशन ऑफ अ साइन फंक्शन, एंड देन दिस इज द सेम फंक्शन फॉर जो कि हमने अनडैम्प्ड स्ट्रक्चर के लिए किया था, ठीक है। जो डैम्प स्ट्रक्चर फ्री वाइब्रेशन थी उसके लिए जो हमने किया था, तो ये साइड भी उसके लिए सेम थी। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट है ये तो मेरे ख्याल में इतना आपको आ चुका होगा कि ये इसका सोल्यूशन को डिस्कस करने का बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। जो अब राइट हैंड साइड है इसके अंदर थोड़ी वेरिएशन आ गई है, तो इसको लेकर के चलेगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन अगर आप देख रहे हैं तो कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन को हम देख ही नहीं रहे, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दिस अबव इक्वेशन इज ऑफ दिस फॉर्म, ठीक है। तो इसका जो वहाँ जो फॉर्म थी वो थोड़ी सी इससे डिफरेंट हो जाएगी, पहले कॉज आएगा, इसमें पहले साइन आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसका फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो दिस द फर्स्ट डेरिवेटिव, दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव, एंड देन पुटिंग दीज वैल्यूज इन टू द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इनटू ये डिफरेंशियल इक्वेशन में हम डालते हैं तो आपको ये चीज़ मिल जाती है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आप इक्वेशन नंबर 7 पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपको सी और डी आ गया है तो देन विल हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज़ ऑफ सी एंड डी एंड एज वेल, ठीक है। तो जिस तरीके से वहाँ हमने कहा था कि भाई इसका जो कोसाइन फंक्शन है वो इसके कोसाइन फंक्शन के बराबर होगा, और इसका जो साइन फंक्शन है चूँकि यहाँ साइन का फंक्शन नहीं है तो वो जीरो है, तो फिर साइन फंक्शन। तो कहने का मकसद ये है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जब इक्वलिटी आप करना चाह रहे हैं तो जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ऑरेंजेस है देन यू विल मैच दोज ऑरेंजेस विद द ऑरेंजेस ऑफ द राइट हैंड साइड, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ भी कर रहे हैं, साइन के फंक्शन को साइन के साथ मैच कराएंगे एंड कॉस के फंक्शन को कॉस के साथ मैच कराएंगे, एंड देन यू विल गेट दिस थिंग, ठीक है। इसमें से आपने किसी भी इक्वेशन में से सी की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में डाल देंगे तो ये आपके पास आ गई, ठीक है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन एंड पुटिंग इनटू द सेकंड इक्वेशन यू विल गेट दिस थिंग, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये चीज़ आ जाएगी, फर्दर सिंप्लीफाइड करेंगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू ऑफ सी, ठीक है। तो दिस इज़ वैल्यू ऑफ सी। अब वैल्यू ऑफ सी को एनी ऑफ द इक्वेशन ऑफ डी में डाल देंगे तो आपको इक्वेशन ये डी की वैल्यू मिल जाएगी, दिस इज़ वैल्यू ऑफ डी। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, सारी की सारी वही चीज़ है। कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन रिमेन सेम, जो पर्टिकुलर सोल्यूशन था उसके अंदर थोड़ी सी वेरिएशन आई और बहुत माइनर वेरिएशन थी। अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे स्टेज के ऊपर जाके, जब आपने कोसाइन फंक्शन का भी आपने सीख लिया है तो देन यू कैन गो एंड यू कैन, या तो आप पावर पॉइंट की स्लाइड देख लें या लेक्चर मेरे जो हैं वो रिकॉर्डेड, उसको दोनों को आप पहले एक को देख लें जहाँ मैंने साइन फंक्शन वाले उसका सोल्यूशन पेश किया था, और अब ये कोसाइन वाले फंक्शन है। तो यू कैन कंपेयर बोथ एंड यू कैन सी देयर इज अ माइन्यूट डिफरेंस इन दिस थिंग, एंड वी आर कॉलिंग दिस इक्वेशन नंबर 11, ठीक है। तो द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स कैन नाउ बी एक्सप्रेस एट दिस थिंग, ठीक है। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स इस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ शायद साइन की टर्म में आ रहा था, यहाँ कोसाइन की टर्म में आ रहा है, तो इसलिए ये हमने इसको शामिल किया है ताकि अगर आपके पास कहीं कोसाइन फंक्शन आ जाता है तो आप उसको देख कर घबराए नहीं। तो जैसे आपका साइन फंक्शन की स्टेप्स है, द सेम स्टेप वी हैव फॉलोड to achieve to get the result of the cosine function, ठीक है। So where the amplitude u naught, आप सब जानते हैं कि u naught क्या है, आप सब जानते हैं कि rd क्या है, आप सब जानते हैं कि ust naught है, there is no need to discuss all these terminologies again and again. So the response, deformation response factor rd and the phase angle phi are the same as those derived previously for a sinusoidal force, ठीक है। तो ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज है इसके अंदर बाकी की चीज़ें हैं वो सारी की सारी वैल्यूज़ वही रहेंगी जो कि हमने उसके अंदर किसके साइनोसाइडल फोर्स के लिए हमने कैलकुलेट किए थे वो सब सेम रहेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट, ये आज का ये था। फिर इसके जो नेक्स्ट लेक्चर है इंशाल्लाह वो भी आप देखेंगे कि उसके अंदर भी हमने छोटी छोटी ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हमने डिस्कस की हैं ताकि वो उसकी आपकी समझ में आ जाए, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन जो प्रैक्टिकल आप होते हैं तो उसके अंदर उसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आती है। जिस तरह आपने हाफ पावर बैंडविड्थ की एप्लीकेशन देखी कि किसी भी फोर्स हार्मोनिक टेस्ट अगर आप कर रहे हैं तो उसका जो डैम्पिंग रेशो है स्ट्रक्चर का, हम उसको बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो दीज हैव वेरी गुड एप्लीकेशन इन योर रियल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसलिए दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड इन माय लेक्चर एज वेल। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।